Hello students, Namaste. Hope all of you are well. Students, this is class 10 chapter number 2 acid, base and salt lecture number 1. So hope all of you are ready to understand these concepts. And the most important thing that today we are going to learn about the chapter which we have already studied in the previous standards. Like in the 7th standard you may have heard about acid, base and salt according to the physical and chemical properties. Hope all of you have understood about that 7th standard concept. If you may have not understand, then today we are finally going to read all the concepts of acid, base and salt. So first of all, let me tell you that what is acid. Generally we understand that anything which is sour in taste, anything which can turn blue litmus to red is called acid. Dear students, these are physical properties of acid. It is not a define of acid. Yeah, you can say that it is a characteristics of acid. But here today we are going to know some of the main points of acid, base and salt chapter. So let's start today's chapter number 2. So the topics which we are going to cover in this video is Arrhenius acid-base theory. This is called theories of acids and base. So you can see on the top of the board I have written the theories given by the scientists like Arrhenius, the scientists like Bronsted and Lowry, the scientists like Lewis. These three scientists have given their theories of acids and base. After that we will discuss about the types of acids and base according to their strength and concentration. After that we will discuss about the physical properties and chemical properties of acids and base, and then we will finally discuss about salts and its types and pH scale and the daily uses of pH in our everyday life. So dear students, first of all, theories of acids and base. I hope all of you have heard this name 300 years ago. How many? 300 years ago. कहोगे सर 300 साल बहुत जुना हो गया. Dear students, let me tell you, in 1884, कौन से ईस्वी में? 1884 में Arrhenius had given its acid, base and salt theory. Generally acid base theory. Arrhenius has said a chemical species which dissociate hydrogen ion in aqueous solution is called acid. कहने का मतलब कोई भी केमिकल स्पेसीज को अगर हम वाटर के अंदर में डालेंगे और वो केमिकल स्पेसीज एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ आयन देता है तो वो एसिड कहलाएगा, और अगर वो OH- आयन देता है वो बेस कहलाएगा. So according to Arrhenius, a chemical species which dissociate H+ ion in aqueous solution called acid and OH- ion in aqueous solution is called base. As for example, सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को लिख लीजिए. A chemical species which dissociates H+ ion. H+ means hydrogen ion. H+ ion in aqueous solution called acid, and the chemical species which dissociate OH- ion in aqueous solution called base. कहोगे कैसे सर? तो जैसे HCl को आप पानी में डालोगे तो HCl जो है H+ और Cl- के रूप में टूटेगा, तो H+ दे दिया मतलब एसिड. उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे तो Na+ और OH- आयन. तो कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो वो एसिड कहलाएगा. कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है तो वो बेस कहलाएगा. कहोगे सर ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये एसिड है बेस है? तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ बच्चों. जैसे अभी मैंने दिया था आपको HCl.
HCl को जैसे ही आप वाटर में मिक्स करोगे तो ये HCl जो है H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट गया, तो H प्लस दे दिया, मतलब ये कंफर्म कर दिया कि ये एसिड है। अगर आप H2SO4 को पानी में मिलाओगे, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाओगे, तो ये H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये भी कंफर्म कर दिया आपको कि ये एसिड है। वापस अगर इस HSO4 माइनस को वाटर में मिलाओगे तो वापस से ये H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, तो ये भी कंफर्म कर दिया कि ये एसिड है। तो कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में उसको मिक्स करते हैं और वह केमिकल स्पेसीज अगर आपको H प्लस आयन देता है, मतलब वो कंफर्म करता है कि वो एसिड है। गॉट इट? नाउ व्हाट्स अबाउट बेस? सिमिलरली अगर कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और वो अगर OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आप पानी में डालोगे तो ये Na प्लस और OH माइनस के रूप में ब्रेक डाउन होगा। OH माइनस आयन दे दिया, मतलब कंफर्म कर दिया कि ये बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको पानी में डालो आप तो ये भी आपको K प्लस प्लस OH माइनस आयन दे दिया, कंफर्म कर दिया बेस। MgOH हॉल ट्वाइस, इसको आप पानी में डाल दो, पानी में जैसे डालोगे Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन दे दिया, कंफर्म कर दिया कि बेस। तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius, the chemical species which dissociate H plus ion in aqueous solution called acid, and the chemical species which dissociate OH minus ion in aqueous solution called base. कोई डाउट एसिड बेस थ्योरी ऑफ Arrhenius में? नहीं। अब यहाँ पर ये इनके पोस्टुलेट्स थे, ये इनकी थ्योरीज थी, लेकिन बच्चों इनकी थ्योरी भी फेल कर गई। पता है क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सीधा सीधी कहा था कि कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर H प्लस आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा, OH माइनस आयन देगा तो वो बेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अमोनिया एक ऐसा बेस है जो H प्लस आयन लेता है। अगर अमोनिया में आप H प्लस आयन दोगे तो ये अमोनियम आयन हो जाएगा। तो अमोनियम आयन यहाँ पर एसिड है और अमोनिया यहाँ पर बेस है। तो अगर कोई केमिकल स्पेसीज H प्लस आयन लेता है तो बेस और देता है तो एसिड। ये थ्योरी हमारे ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब ने दिया था। तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब का ये थ्योरी जो है मतलब एक तहलका मचाएगा। तो 1923 में बच्चों याद रखना, जो लिमिटेशंस था हमारा Arrhenius एसिड बेस थ्योरी का, वो पोस्टुलेट्स बन गया किसका? लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का। कब? याद रखना, ये ईयर्स जो लिख रहा हूं उस ईयर्स को लिखना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ईयर्स का फायदा क्या होता है? बहुत फायदा होगा बच्चों, जब आप लोगों को ये एग्जाम में पूछा जाएगा, जब आप एग्जाम में इसके बारे में लिखोगे उस समय आपको पता चलेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स पार्ट ऑफ इट। सो इन 1923 ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट आया, a substance which donate proton ion is called acid and a substance which accept proton ion, मतलब a substance या chemical species कुछ भी डाल दो, a substance which donates proton ion, proton ion का मतलब हो गया बच्चों H plus ion, proton ion is called acid, and a substance which accepts proton ion is called base। बोला कैसे सर आप ये बताइए? तो इन्होंने भी जैसे हमारे Arrhenius साहब ने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस साइंटिस्ट ने भी अपना कंसेप्ट दिया। दोनों लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने मिलकर उन्होंने भी कहा देखो अगर हम HCl को डालते हैं भाई, HCl को एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डालेंगे तो ये प्रोटॉन आयन देगा, H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। H2SO4 को डालोगे तो H प्लस और HSO4 माइनस आयन देगा। HNO3 को डालोगे तो H प्लस और NO3 माइनस देगा। तो ये सब में आप लोग देख रहे हो ये प्रोटॉन आयन, H प्लस आयन को प्रोटॉन आयन
आयन भी कहा जाता है। तो H प्लस आयन दिया मतलब वो सब कंफर्म कर दिया कि ये सब एसिड है। अब दूसरा रहा बात, अ केमिकल स्पीसीज या सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट H प्लस आयन। जैसे मैंने तुम लोगों को अमोनिया की बात कहा था, तो अमोनिया क्या करता है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है और बन जाता है अमोनियम प्लस आयन। तो ये हो गया हमारा बेस। बहुत सारे ऐसे बेसेस हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं और वो बन जाता है बेस। बच्चों यहाँ पर हमारे लॉरी और ब्रॉन्स्टेड साहब ने 1923 में अपना कंसेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि जब भी आप केमिकल स्पीसीज में, कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस कहलाएगा, और अगर H प्लस आयन को एक्सेप्ट नहीं, डोनेट करता है तो वो एसिड कहलाएगा। बोला सर अगर वाटर में हम डालें तो क्या होगा बच्चों, वाटर प्लस वाटर H2O प्लस H2O, तो एक H प्लस और दूसरा OH माइनस, तो ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो बोलोगे सर हाइड्रोनियम आयन क्या हुआ, बेस हुआ कि एसिड हुआ, क्योंकि इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया है इसलिए बेस हो गया। समझ में आया बच्चों? कोई भी केमिकल स्पीसीज अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, द केमिकल स्पीसीज या केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट H प्लस आयन called base, which gives या which donates H plus ion is called acid, according to Lorry Bronsted। समझ में आ गया? Yes or no? Yes। एग्जाम्पल सारे लिख लिए आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे साइंटिस्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बाद लिविस साहब आए थे। ये बहुत कम बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेना। इन्होंने 1930 में एक अपनी थ्योरी दी थी। 1930 में इन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो बेस बनेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड बनेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू लिविस a substance या an element which donates a pair of electron called base, and an element which accepts a pair of electron called acid। अब जैसे आप लोग बोलोगे कैसे सर, यहाँ पर तो उल्टा लग रहा है हम लोगों को, बिल्कुल ऐसा लगेगा आप लोगों को। जैसे आप खुद सोचिए, क्लोरीन माइनस या क्लोरीन है यहाँ पर, और HCl को जब आप ब्रेक करते हो तो ये H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जो लेता है उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज लगता है। मतलब जो भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और जो भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज लगेगा। सो द केमिकल स्पीसीज व्हिच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एसिड, एंड a chemical species which donates a pair of electron and which accepts a pair of electron called acid, and which donates a pair of electron called base। जनरली अभी तक आप लोग जो भी पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे जो H प्लस आयन देगा वो एसिड, और जो OH माइनस आयन देगा वो बेस, और जो H प्लस देगा प्रोटॉन आयन देगा एसिड, जो H प्लस आयन लेगा वो बेस, बराबर। अब जो है इन्होंने सीधा सीधी कह दिया इलेक्ट्रॉन पर। अगर कोई भी केमिकल स्पीसीज है और वो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, मतलब सीधा सीधी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में लिविस साहब का कंसेप्ट है। और कोई भी थ्योरी जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में आ जाती है बच्चों, तो उसके बाद वो थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद किसी ने भी एसिड बेस के ऊपर में चर्चा ही नहीं किया। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी आया, उसके बाद बहुत सारे आए, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी का एक फुल स्टॉप लग गया। एक एसिड बेस थ्योरी जो है, जो डेवलप होना चाहिए था, सिंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में आ गया तो ये थ्योरी कंस्टेंट हो गई। यहाँ पर इन्होंने कह दिया क्लोराइड माइनस आयन, Cl माइनस आयन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड, और ये इलेक्ट्रॉन दे
दे रहा है तो ये हो जाएगा बेस, बाकी सबसे पूरा अलग। तो इनका कहना सीधा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। कोई भी एलिमेंट का अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज सोडियम प्लस, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हो गया बेस, और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हो गया एसिड। एक एक एलिमेंट के ऊपर में उन्होंने रिसर्च कर डाला कि हर एक एलिमेंट के ऊपर में जो चार्ज होगा उस चार्ज से आप पता कर पाओगे कि कोई भी एलिमेंट एसिड है या बेस। तो ये था बच्चों हमारा 3 थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, Arrhenius acid base theory, Bronsted-Lowry acid base theory and Lewis acid base theory। आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों थ्योरीज कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को जानते हो आप लोग, पावर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। बोलोगे सर इसको वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों कहा है? तो बच्चों जो केमिकल स्पेसीज जो भी एसिड होगा अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में इजीली H+ आयन डिसोशिएट कर दे वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो डिफिकल्टीज के साथ डिसोशिएट करे वो हो जाएगा वीक एसिड। जैसे तुम HCl को डालोगे तो HCl पानी में तुरंत H+ आयन देगा, Cl- आयन देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 को डालोगे तो H+ आयन HSO4- तुरंत कर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 को डालोगे H+ NO3- स्ट्रॉन्ग एसिड। H3PO4 को डालोगे H+ H2PO4-। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही तुरंत H+ आयन डिसोशिएट कर देता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट अबाउट द वीक एसिड? The chemical species which dissociates hydrogen ion in aqueous solution with difficulty called weak acid. Acidic acid CH3COOH पानी में डालोगे तो तुरंत H+ आयन नहीं देगा बच्चों, बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ देने वाला है, इसीलिए इसका नाम हो गया वीक एसिड। जितने भी फॉर्मिक एसिड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो है बच्चों क्या होंगे? वीक एसिड। वैसे ही बेस का भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जैसे एसिड्स का आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, उसी तरह से अगर कोई केमिकल स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस में अगर कोई भी बेस है जो एक्वस सॉल्यूशन में तुरंत OH- आयन दे देता है, उसको आप कहोगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो डिफिकल्टीज के साथ आपको देता है वो हो जाएगा आपका वीक बेस। द केमिकल स्पेसीज व्हिच डिसोसिएट OH- ion in aqueous solution very easily is called strong base, and the chemical species which dissociate OH- ion in aqueous solution with difficulty called weak base। तो दो तरह के आपके अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। MgOH all twice, CaOH all twice, ये सब वीक बेस, ये सब स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ तक कोई बच्चे दिक्कत है आप लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। बच्चों कंसंट्रेशन वर्ड जो है ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वॉल्यूमेट्रिक सब्सटेंसेस। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा कर देते हो और सॉल्वेंट कम कर देते हो तो वैसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर सॉल्वेंट ज्यादा कर देते हो और सॉल्यूट कम कर देते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो वैसे ही एसिड और बेस भी है बच्चों दो तरह का, कंसंट्रेशन के आधार पर कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। बोलोगे सर ये होता क्या है? तो जिस एसिड के अंदर में आपका सॉल्यूट का मात्रा, सॉल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो वो एसिड हम लोगों का कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, और ऐसा एसिड जिसके अंदर में
सॉल्यूट का मात्रा कम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर, तो वैसे एसिड को हम लोग डाइल्यूटेड, ये किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को आप लोग डाइल्यूटेड बना सकते हो उसमें ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन मिलाने पर. So the chemical species which have less solute and more dilute या more aqueous called diluted acid and which have more solute and less solvent called concentrated acid. ये आप बना सकते हो, ज्यादा पानी मिलाने पर diluted हो जाएगा concentrated acid. Got it? So according to strength and according to concentration, all of you have understood about the acid and base. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. और इसके बाद है हमारा physical and chemical properties of acids and bases. तो यहाँ पर strong acids के भी एग्जाम्पल मैं आपको रफ कर दे रहा हूँ. यहाँ पे सीधा से भी मैं लिख देता हूँ strong acid and strong base, weak acid and weak base. कंसंट्रेटेड का आप लोग समझ ही गया. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाओ. अब आ जाओ बच्चों प्रॉपर्टीज के ऊपर. अभी तक अपने जितना पढ़ रहा था, जो भी पढ़ रहा था आप लोगों ने, वो सब के सब आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और थ्योरीज थे. अब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज gives us information about how they look like, what they do changes. And chemical properties gives us information about when they do reaction with other things, how this property changes. Got it? So let's start physical properties. तो properties, physical properties में अगर हम एसिड और बेस की चर्चा करें, बराबर, physical properties में बच्चों सबसे पहला physical properties, they are sour in taste. They are sour in taste. बेस का क्या हो जाएगा? They are bitter in taste. दूसरा, they can turn blue litmus paper to red. They turn blue litmus to red. Blue litmus paper to red. ये क्या करते हैं? They turn red litmus paper to blue. They turn red litmus paper to blue. तीसरा प्रॉपर्टी, acid they can neutralize basic soils. ये they can neutralize acidic soil. They are found in fruits and vegetables. And bases are found in soaps and creams. Concentrated acids can burn our skin. Can burn our skin, and concentrated bases can harsh our skin. और भी कोई प्रॉपर्टी लिखना है बच्चों? वैसे जनरली 5 काफी होता है. दे आर अगर आप एसिड को छुओगे तो आपको आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही रगड़ापन जैसा लगेगा, क्रश टाइप का. और बेसेस आर सॉफ्ट इन या सोपी इन टच. दे आर क्रश इन टच एंड दे आर सॉफ्ट इन टच. दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी. सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच. ये सारे बच्चों हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतने लिख सकते हो. सो दीज आर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस व्हिच यू कैन राइट. सो फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस
physical properties of acid and bases. Now let's come the sixth point, that is chemical properties of acids and bases. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोगों को खाली रिएक्शन करना होता है. क्या करना होता है? रिएक्शन. केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल दीजिए. केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग सबसे पहले एसिड्स में और दूसरा बेसिस. अब यहां पर सीधे मैं रिएक्शन लिखूंगा, आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लेना है. बराबर. कोई भी एसिड को जब आप मेटल के ऊपर में डालोगे तो वो मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आयरन एक मेटल है, इसके ऊपर में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो ये आपको फेरस सल्फेट आयरन का मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. बराबर. कोई भी एसिड के ऊपर में अगर आप एसिड को मेटल के ऊपर में डालोगे, आयरन ही है, उसको आपने HCl डाला इसके अंदर में, तो ये आपको FeCl2 प्लस H2, यहाँ पे आगे में 2 डाल दीजिए. तो कोई भी मेटल के ऊपर में अगर हम एसिड्स को डालते हैं तो मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. और बेसिस के ऊपर में डालेंगे बच्चों तो जनरली बेसिस जो है मेटल्स के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं करता है. सिर्फ एक ऐसा बेस है जो रिएक्शन करता है, वो है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डालोगे तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2. मतलब आप लोगों को याद रख लेना है कि अगर सिर्फ एक ऐसा बेस है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बेस है जो हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है. तो पहला हो गया. दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम किसी भी एसिड्स को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, बोलोगे सर ये क्या होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? जैसे जस्ट सपोज कीजिए HCl है और इसको हम लोगों ने NaHCO3 के साथ रिएक्शन किया, तो ये हम लोगों को क्या सब देगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2. अगर हमने HCl को Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया तो ये हम लोग को 2NaCl प्लस H2O प्लस CO. मतलब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स. अगर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स को रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पर एक चीज और, अगर आप बोलोगे सर instead of acid if we do reaction these things with base then what will happen? तो बच्चों यहाँ पर जैसे आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जिसको हम लोग स्लेट लाइम कहते हैं. स्लेट लाइम के अंदर में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर में अगर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो ये हम लोगों को जनरली कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और अगर एक्सेस मात्रा में आपने अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर में वाटर को पास किया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, तो ये आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस, बाकी तो कुछ बनेगा ही बच्चों, वाटर का चीज ही नहीं. तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जब एक्सेस मात्रा में आप लोग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर में एक्सेस मात्रा में अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा. तो इस तरह से दूसरा रिएक्शन हो गया. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. कोई भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करोगे, जैसे मान लीजिए HCl है और उसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो हमारा NaCl प्लस H2O. अगर किसी बेस को तुमने एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? मेटालिक सॉल्ट प्लस H2O. तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अगर हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. तो बच्चों ये था हमारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज. जनरली 4-5 रिएक्शन लिखा जाता है. आप लोग चाहो तो जितने रिएक्शन लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो.
यहाँ पर एक और रिएक्शन अगर ऑक्साइड्स का लिखोगे, मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, चौथा पॉइंट मेटेलिक ऑक्साइड Na2O को अगर HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। अगर तुम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलोगे क्या होता है सर, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मान लो कैल्शियम, कार्बन मोनोऑक्साइड डालो। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को बेस के साथ अगर आप लोग रिएक्शन करोगे, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई भी बेस ले लीजिए, अगर बेसिक ऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड, किसी भी चीज को अगर आप रिएक्शन करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, आप लोगों को मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। बोलोगे कैसे सर, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करोगे, क्या करोगे, बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एसिड। वाटर में भी अगर आपने देखा था बेस है तो सीधा सीधी H2CO3 बनेगा, इट विल गिव्स यू अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो इस तरीके से ये हमारा 4 केमिकल रिएक्शंस है जो हम लोग कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो इस तरीके से आप लोग सारे केमिकल रिएक्शंस को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद बचेगा हमारा सॉल्ट एंड इट्स टाइप। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, अगर नहीं दिक्कत हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, राइट। चलिए बच्चों टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाइए सीधा सीधी अगर हम बात करें सॉल्ट एंड इट्स टाइप का, तो बोलोगे सर ये सॉल्ट एंड इट्स टाइप में क्या सब पढ़ना है, तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे सॉल्ट्स होते हैं। अब आ जाइए सॉल्ट एंड इट्स टाइप। तो सॉल्ट आप लोगों ने देखा एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब हम लोगों को मेन पढ़ना है सॉल्ट के टाइप्स। सॉल्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, 4 टाइप के, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड एम्फोटेरिक सॉल्ट। बोलोगे सर ये क्या होते हैं, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, ये होते क्या है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया जाता है तो हम लोग को एसिडिक सॉल्ट मिलता है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाते हैं तो हम लोगों को बेसिक सॉल्ट मिलता है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और जब हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो हम लोगों को एम्फोटेरिक सॉल्ट मिलता है। बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग जानते हो, वीक एसिड वीक बेस भी जानते हो। कोई भी रिएक्शन जैसे मगर एसिडिक सॉल्ट करना है तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में डालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बराबर, इस दोनों को मिलाओगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो कैल्शियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट। समझ में आया। कोई भी सॉल्ट और सॉल्ट का नेचर कैसे पता चलेगा, तो इससे हमको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट, और वीक एसिड और वीक बेस से हम लोगों को पता चलेगा नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर एम्फोटेरिक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज पीएच स्केल। बोलोगे सर ये क्या होता है,
पीएच स्केल अगर आप मुझसे पूछोगे पीएच स्केल क्या होता है, तो दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, और वो भी निगेटिव टर्म में। पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ये सॉल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन के बारे में हम लोगों को बताता है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस सॉल्यूशन सर, द सिस्टम रिजल्टिंग व्हेन द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या है ये आप लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पीएच ऑफ सॉल्यूशन जानना पड़ेगा। बोलोगे सर मैथमेटिकली निगेटिव लॉगरिथम to the base of 10 of molar concentration H3O+ is called aqueous solutions pH। pH का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सुनो। pH is equal to minus log H3O+। बोलोगे सर ये H3O+ कहां से आया, तो वो भी बता देता हूं बच्चों। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था H2O और H2O को मिलाओगे तो ये तुमको H3O+ और OH माइनस, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये pH जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। कोई पूछेगा व्हाट इज, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल आप इसको टर्म कह सकते हो, और ये निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड pH। और इस pH के वैल्यू से आप किसी भी चीज का जो pH वैल्यू होगा वो निकाल सकते हो। बोलोगे कैसे सर, तो जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताया वाटर को वाटर से मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना, उसी तरह से बहुत सारी चीजों का pH वैल्यू दिया रहता है। जैसे अगर pH वैल्यू हमारा 10⁻⁻6 दिया हुआ है, बराबर, 10⁻⁻6 का मतलब हो गया यहाँ पर pH वैल्यू 6। 10⁻⁻4 का मतलब हो गया 10⁻4 का मतलब 4। तो हम सब जानते हैं कि 7 से पहले वाले और 0 से बड़े और 7 के पीछे एसिडिक होता है, और 7 से बड़ा और 14 से छोटा ये बेसिक होता है, बराबर। और 7 जो है हमारा न्यूट्रल होता है। तो वाटर का पीएच वैल्यू 7, उससे कम ये जो टर्म आप लोगों को मिलेगा, यही टर्म से आप लोग पता करोगे ये एसिडिक है या बेसिक है। तो 10⁻⁻ में जो भी रहेगा बच्चों, इसका मतलब हो गया वो वैल्यू है। वो माइनस को हटा दो, 10 का एक्सपोनेंट को हटा दो, वो उसकी पीएच वैल्यू है, वो भी कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो ये जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू से आप लोग पता कर लोगे कि ये सब्सटेंस का पीएच वैल्यू एसिडिक है या बेसिक है। 10⁻⁻6 मतलब 6 मतलब एसिडिक, 10⁻⁻4 मतलब 4 मतलब वो एसिडिक। अगर यही 8 रहता 10⁻⁻8 10⁻⁻10 तो वो हो जाता 8 10, तो वो हो गया बेसिक। तो 7 से बड़ा बेसिक, 7 से छोटा एसिडिक, 7 हो गया हमारा न्यूट्रल। पीएच का हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत फील्ड्स में हम लोग इसका यूजेस करते हैं। आप लोगों को पता होगा वी आर यूजिंग स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द सॉइल्स। सॉइल के पीएच वैल्यू से अगर वो सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। हम लोग हमारे शरीर के अंदर में HCl गैस होता है, ज्यादा एसिड खाने से हमारे शरीर के अंदर में एसिडस गैस प्रेजेंट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटी एसिड्स का हम लोग यूज करते हैं। टूथ डिके के रूप में बहुत सारे देखना चॉकलेट स्टिकी पार्टिकल्स होते हैं, वो खा करके हम लोग एसिडस के फॉर्म्स को जमा करते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के रूप में हम लोग पेस्ट यूज करते हैं। कुछ बी स्टिंग अगर हम लोगों को बाइट कर लेता है तो उसको रब करने के लिए या तो हम लोग कोई बेसिक पेस्ट या फिर मेटल से रब करते हैं, तो उस फॉर्म में हम लोग पीएच का अपने डेली लाइफ में यूजेस करते हैं। बाकी बचा बच्चों हम लोगों का 2-3 सॉल्ट है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। आज का तो ये वीडियो था। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है ये सारे वीडियोस का आप लोग नोट्स बना लीजिए, एक अच्छे से कंसेप्ट में एक्सरसाइज इंडेक्स के क्वेश्चंस लिख लीजिए। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।